Hello friends, we are again together with a new video. This is me, Shaukat Lohar. Right now we have a topic of origin of language. There are so many myths and realities regarding originality. How language was evolved. Throughout the world, number of people speak different languages. So I have here included introduction, myths and theories, realities of language origin, diversity of languages, challenges of language and other species, conclusion. Introduction. Oftentimes we have been listening, language is one of the humanity's most remarkable abilities, shaping our communication, culture and cognition. The study of language origins has intrigued scholars for centuries, leading to various theories and myths. Understanding the origin of language sheds light on why there are different languages, why learning language can be challenging and whether other species possess similar abilities. यानी कि ज़बानों के हवाले से उनकी जो इब्तिदा है, उनमें जो तनव्वुव है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और क्या माजरा है कि मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में लोग मुख्तलिफ़ ज़बानें क्यों बोलते हैं और ज़बान का इजरा या ज़बान की इब्तिदा जो है वो कैसे और क्यों हुई. आए इस पे बात करते हैं. Myths and theories of language. Throughout history, numerous myths have attempted to explain the origin of language, from divine intervention to tales of single primal language. These myths reflect humanity's fascination with language mystery. One of the famous myths is the Tower of Babel, found in the religious texts such as Bible. According to the myth, humans once spoke a single language until divine intervention scattered them across the earth, each group speaking a different language. ज़बान के बारे में एक मिथ या असातीर या थ्योरी या नज़रिया ये भी है कि ज़बान जो है वो एक टावर ऑफ बेबल पे पाई जाती है और ये चीज़ जो है बाइबल से जुड़ी हुई है. यानी कि लोग वहाँ पे ये ज़बान बोलते थे और उसके बाद जो है उनको ज़मीन पे फेंका गया. तो एक ये मिथ है या इसको आप यानी कि वो नज़रिया कह दें. इन कंट्रास्ट मॉडर्न लिंग्विस्टिक रिसर्च ऑफर्स मोर subtle explanations. Theories such as the bobo, the popo, the ding dong theories propose these theories propose that language originated from natural sounds, emotional expressions or the imitation of environmental sounds respectively. 4,90,000 साल पहले लोग दुनिया में रहते थे और दुनिया में कोई भी लिखा पढ़ा आदमी नहीं था. ये सारा कुछ जो दुनिया में हम देखते हैं ये 10,000 की कहानी है, 10,000 साल की कहानी है, जिसमें 10,000 पहले तक दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था. और ये जैसे इंसानों की स्पेशीज़ हैं, होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस का एक जो कंटेम्परेरी यानी नेंदरथालीज था वो उसकी स्पेशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो गई. अब लैंग्वेज कैसे इरप्ट हुई? लैंग्वेज जो है वो इमोशंस के थ्रू इरप्ट हुई और खौफ और दूसरी जो यानी चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मजबूर करती थी, तो इस वजह से लैंग्वेज की स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुई. जो आज दुनिया में इतनी ज़बानें पाई जाती हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना इख्तलाफ है, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, लेकिन इमोशंस की ज़बान सेम है, एक जैसी है. जैसा कि आप अगर यहाँ पे रोते हैं या अफ्रीका में कोई बंदा रो रहा है तो उनके आंसू में और आपके आंसू में कोई डिफरेंस नहीं होगा. आप यहाँ पे स्माइल करते हैं या हंसते हैं तो आपका हंसना या आपको हंसने में जो गड़े पड़ते हैं तो वो चीज़ जो है दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी बंदा, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, उसकी एक ही जैसी कम्बिनेशन है. तो इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही लैंग्वेज है. लेकिन जो एक्सप्रेशंस हैं
यानी लिखने के, पढ़ने के, वो मुख्तलिफ हैं। अब आते हैं रियलिटीज़ ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन्स। Realities of language origins. While myths providing intriguing narratives, scientific inquiry points towards a more gradual and complex process. The emergence of language likely involved in a combination of biological, cognitive, and social factors. Biologically, humans possess unique vocal apparatus, allowing for production of a wide range sounds. Additionally, our brains exhibit specialized areas for language processing, suggesting an evolutionary adaptation for communication. Socially, language serves as a tool for cooperation, facilitating complex interactions and transmission of knowledge across generations. Cognitively, language likely evolved from simple forms of communication such as gestures and vocalizations, gradually developing into structured systems of symbols and grammar. Now we have diversity of languages. Diversity of languages या ज़बानों का तनव्वुव किसको कहते हैं? Let's speak about it. The existence of different languages can be attributed to various factors including geographical isolation, historical events and cultural evolution. यानी कि इसमें तारीख़, अदवार और बहुत सारे और फैक्टर्स, मुआशी और समाजी चीज़ें हैं, वो उसमें शामिल हैं। नंबर 2, जोग्राफिकल बैरियर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस कैन आइसोलेट पॉपुलेशन लीडिंग इनटू लिंग्विस्टिक डाइवर्जेंस। ओवर टाइम, हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज कॉन्क्वेस्ट एंड माइग्रेशंस कैन रिजल्ट इन लैंग्वेज contact that emergence of Creole languages. Cultural factors such as social identity and prestige influence language use and development. As societies evolve, language adapt to meet communication needs of other speakers, resulting in linguistic diversity. यानी ज़बान के तनव्वुव में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें इंसानों की एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन, ये सबसे बड़ा मसला है। आपने देखा होगा जंगो जदल की वजह से बहुत सारे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, या यानी कि एक जगह पे अगर रोज़गार तंग हो जाए या वो ज़मीन उन पे तंग कर दी जाए तो दूसरे कल्चर में वो शामिल होते हैं। फिर एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन तक वो ज़बान में बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं, और वो हमारे पास भी इनके बहुत सारे मिसाल हैं। और उसके अलावा जो जोग्राफिकल बैरियर्स हैं वो भी ज़बान पे बहुत असरअंदाज होते हैं। उसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स हैं। सपोज़ आप देखेंगे कि बहुत सारे कल्चर्स हैं और जोग्राफिकल चीज़ें जैसा कि ओशियंस, पहाड़ और बहुत सारी और जगहें जो हैं, उनमें एक रीज़न होता है ज़बान में तब्दीली लाने का। आप देखेंगे कि एक पहाड़ का नाम, एक समंदर का नाम या एक मछेरे, जो उनकी वोकेबलरी होती है तो उसको हम रजिस्टर लैंग्वेज कहते हैं। उनके अपने अपने स्लैंग्स होते हैं, अपने अपने रजिस्टर होते हैं, तो उसमें एक वैरायटी, एक खूबसूरती होती है। हम किसी को इस चीज़ पे स्टेरियोटाइप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़बान का तनव्वुव है। तनव्वुव यानी कि एक पौधा है, उसमें फूल लगे हुए हैं और उसकी बहुत सारी शाखें हैं। ज़बान इसी तरह है। चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ज़बान सीखने में हमें क्या चैलेंजेस या ललकार जो है वो कौन सी है, या हमें कौन सी मुश्किलात हैं जो ज़बान को सीखने में हायल होती हैं, आए उस पर बात। लर्निंग अ लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेरिएबिलिटी. Language exhibit integral grammatical structure, diverse vocabulary and subtle cultural delicacy. ज़बान में आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, या उसमें वोकेबलरी, दूसरी चीज़ें जो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, तो उसमें सीखने में बहुत मुश्किल होती है. Moreover, language learning involves mastering 4 essential skills: listening, speaking, reading and writing. Each skills require time and effort to develop, often involving exposure, practice and feedback. Furthermore, difference in phonology, syntax, semantics,
between languages and pose obstacle for learners, requiring certain themes to adopt their cognitive process and linguistic. Language and other species. ज़बान दूसरी जो स्पेशीज़ हैं उनमें ज़बान का क्या हिस्सा है, यानी इंसानों के अलावा दूसरी जो स्पेशीज़ हैं उनमें ज़बान का क्या ताल्लुक है. सपोज while humans are unique in their linguistic abilities, other species exhibit forms of communication. Okay, primates such as chimpanzees and bonobos use gesture, vocalization and even rudimentary sign language to convey. यानी कि बहुत सारे जो यानी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ज़बानों का तनावुर जो है वो मुख्तलिफ होता है. Birds such as parrots and songbirds possess complex vocalization and ability to mimic human species. Dolphins and whales communicate through vocalization and echolocation. However, these communication systems lack the complexity and flexibility of human language, and suggesting that while other species possess communication abilities, they do not exhibit true linguistic capabilities. यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंस्टिंक्टिव लिंग्विस्टिक्स है या इंस्टिंक्टिव लैंग्वेज है वो बहुत सारे जो जानदार हैं उनमें वो उतनी ही रखी जाती है जैसा कि इंसानों में. यानी लैंग्वेज जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन जानदार जो होते हैं वो उनके पास जो ही यानी बुनियाद से दी जाती है लैंग्वेज आखिर तक उनके पास वही रहती है. तो ये लैंग्वेज इन अदर स्पेशीज़ यानी मुख्तलिफ किस्म के जो स्पेशीज़ हैं उनके यहाँ लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए. द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज मल्टीफेसेटेड फिनोमेना shaped by biological, cognitive and social factors. While myths offer imaginative explanation, scientific inquiry reveals a more gradual and subtle process. The diversity of language reflects humanity's rich cultural mosaic influenced by geography, history and social dynamics. Learning a language can be challenging due to its complexity and variability, require time, effort and cultural immersion. इख्तिताम में हम ये कह सकते हैं कि ज़बान की ओरिजिन और ये एक बहुत यानी मल्टीफेसेटेड मोसेक टाइप एक फिनोमेना है जिसमें बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, जोग्राफिकल और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं ना वो उसमें शामिल हैं जो ज़बान को ज़बान बनाती हैं. यानी खाली ये नहीं है कि ज़बान बस कोई दो चार जो है ना वो अल्फ़ाबेट या हमने अल्फाज मिला के ज़बान बना ली, ऐसा कुछ नहीं है. ज़बान यानी इमोशन से लेके दूसरी बहुत सारी चीज़ों तक जो उसको हम कहते हैं कि ये कंक्लूजन में कम्प्लेक्सिटी या वेरिएबिलिटी या कल्चरल इमर्शन, तो ये ज़बान का है किस्सा जिसको हमें समझना चाहिए.